session we would be addressing on the Chandigarh EV policy, and I welcome once again all the speakers and I thank you for coming here. So now I'd like to welcome Grace. So I'm here to give you some insights about the EV policy launched last year on 20th of September 2022. So we at Chandigarh administration have kept some very aggressive targets for mixing the EVs in our registration part. So the targets are really aggressive. So for two-wheelers we have kept a 35% target for first year, 70% for second year, and 100% after 3 years. So you get an incentive. So we have kept it on the battery cost. So the battery capacity. So for every kilowatt we are giving a 5,000 incentive. There is a capping for that for, let's say, e-4-wheelers. There is a capping of 1,50,000, and there is an early bird incentive also. So if you purchase a vehicle by 31st of March 2023, you will get an incentive of 50,000 for early bird, under early bird incentives for your vehicle. This is applicable on e-2-wheelers, e-carts, e-autos, good carriers, LN5 and N1 also, for commercial vehicles also. सो दोस्तों इतना तो आपको पता चल ही गया कि आज हम आए हैं ईवी एक्सपो जो कि चल रहा है एग्जीबिशन ग्राउंड सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। ये चलेगा 3 तारीख से लेके 5 फरवरी 2023 तक सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो अगर आप भी हैं ईवी व्हीकल्स के शौकीन या ईवी नहीं तो हाइब्रिड गाड़ियों के और हाई एंड गाड़ियों के आप शौकीन हैं तो ये आपके लिए मस्त जगह है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए और एक्सप्लोर करिए इस ईवी एक्सपो को। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अपनी पसंद की कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। और अगर आप साथ में जानना चाहते हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की ईवी को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। और अगर आप हैं ईवी के मैन्युफैक्चरर या डीलर और ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई ईवी का बिजनेस या बैटरी या सोलर रूफ पैनल तो आपकी हर जरूरत यहाँ पूरी होगी। तो आइए चलिए घूमते हैं इस एग्जीबिशन। Hello everyone, this is Dr. Talwar from Chitkara University. Basically, we are running a department called DICE, Department of Interdisciplinary Courses in Engineering. Any student from any branch can come up with their ideas, and here we have 2 examples of the projects where we are converting an old bike into an electric bike. So we have taken an old bike and students have converted this bike into an electric bike because new bikes are quite costlier. They are more than 190, 180 they are costing. But this converted bike is only 135, you can say. Costing is 135 and it is providing all the facilities as a new bike. So instead of dumping old bikes, you can come up to the Chitkara University and we can convert your old bike into an electric bike. Similarly, we have an electric cycle. A common person or a person who is doing daily work, he travels 10 to 20 kilometers daily and he has to pedal their cycle. So we are providing a facility that they can convert their cycle, normal cycle, into an electric cycle, and its cost is also very nominal, around 30 to 35. We are giving this cycle after conversion to the concern. So this is our facility and students are also learning and we are coming up with a startup also for these conversions. ये बजाज चेतक है, इलेक्ट्रिक में लॉन्च हुआ है। अभी तक क्या है कि पहले मतलब मेटल बॉडी में लॉन्च किया है कंपनी ने, कोई इसका फाइबर पार्ट नहीं है। ये देखो स्टील बॉडी है, पूरा मेटल बॉडी है और ये इसका ड्राइविंग फंक्शन है, ये इसका रिवर्स फंक्शन है। और यहाँ पे जब तक ये स्टैंड रहेगा तो ये न्यूट्रल रहेगा। जैसे ही हम इसको स्टैंड से हटाएंगे तो इसको ड्राइव मोड पे लेके आएंगे तो ये सर ड्राइव में आएगा, ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में जाएगा और रिवर्स मोड में आएगा। ये इसका चार्जर स्पेस है और ये USB केबल है। यहाँ पे हम केबल अटैच करके आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है इजीली।
और ये 18 लीटर का सर इसका बूट स्पेस है। यहाँ पे हाफ हेलमेट आता है और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। 4 घंटे इसकी चार्जिंग टाइम है और 4 घंटे में आपको 95 किलोमीटर की ये रेंज देता है। 70 इसकी टॉप स्पीड है, 70 की स्पीड देता है और 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर मान लो चंडीगढ़ में 5 रुपए का 1 यूनिट है तो ये आपको 15 रुपए में सिर्फ 95 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, सिर्फ 15 रुपए में। एज कम्पेयर टू पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 200-300 रुपए डेली का 45 रेंज लेते हैं। तो ये आपके महीने के 2-3 हज़ार सेव कर रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर। जो मैम जो आपने रिवर्स पार्ट बताया, रिवर्स क्या जैसे गाड़ी की तरह रिवर्स जाती है वैसे ही है? रिवर्स बिल्कुल बैक आपकी जाएगी बिल्कुल जैसे गाड़ी है। और ये कीलेस है टोटल। इसके साथ इसके ना एक सेंसर कनेक्टिविटी की है, स्मार्ट की है। तो अगर वो इसकी रेंज में रहती है तो आपका स्कूटर स्टार्ट होता है, वर्क करता है, फंक्शन अदरवाइज नहीं करता। वो इसके साथ इसकी सेंसर कनेक्टिविटी है। मैम बैटरी की लाइफ कितनी है इसकी? सर इसकी बैटरी की लाइफ है 7 साल की लाइफ है और 70,000 किलोमीटर। एंड प्राइस वाइज? प्राइस वाइज 160 ऑन रोड प्राइस है, इंश्योरेंस आरसी इंक्लूड है। और इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है या उल्टा सब्सिडी दे रहा है? सब्सिडी सर इस पे मिल रही है 24,650 की। वो स्टेट सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाती है विदिन 20 डेज। हाँ जी, और इसमें 3 साल की इसकी वारंटी है, फुल बॉडी विद बैटरी। इन केस कोई भी टेक्निकल इश्यू या फॉल्ट आता है तो हमारी कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी। रेडीली अवेलेबल है या बुकिंग करवानी पड़ेगी? बुकिंग करवानी पड़ेगी सर, बुकिंग होगी ऑन द स्पॉट डिलीवरी 1 डे। एंड कलर्स क्या क्या अवेलेबल है इसमें? रेड, ब्लैक, ब्लू, गोल्डन। Thank you. थैंक यू सो मच सर। टोयोटा की हाइब्रिड ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ 3 ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ SGV। S ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੈ 17 ਲੱਖ ਤੇ ਸਰ ਔਨ ਰੋਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ G ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਦਾ, ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊ ਟੋਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਚੈਸਟਨਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਇਡ AP ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ, AC ਆਟੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਆ ਗਈ ਸਰ ਫਰੰਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਲੈਦਰ ਸੀਟਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੈਦਰ ਐਪ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈਡ ਅਪ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਓਨਲੀ ਫॉर 10 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਐਵਰੇਜ 27.97 kmpl ਦੀ ARAI ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ 30 ਪਲੱਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, 33 ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਵੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਵੇਟਿੰਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 7 to 8 months। 7 to 8 months ਰਿਟਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਡਿਮਾਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ XUV ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੋਇਟਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਮੋਲਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ। ਬਟ ਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है। सुकून सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और पिछले बहुत सालों से हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है कि
मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने बचपन में पढ़ाई करी और हमने पढ़ा भारत एक कृषि प्रधान देश है, बट कृषि बहुत उलझा हुआ है हमारा, मतलब बहुत 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 एक्सपेंसिव हो गया है कृषि करना। तो हमने एक ऐसा ट्रैक्टर डिज़ाइन किया है जो इलेक्ट्रिक है, जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दी है। मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम इसने ख़त्म करी है। पहला, इसने पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक है, देयर इज नो पॉल्यूशन। दूसरा, इसने साउंड ख़त्म कर दिया है। तीसरा, इसने वाइब्रेशन ख़त्म कर दिया है। और चौथा, चूँकि इसमें डीजल वगैरह नहीं डलता, इससे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो गया। ये ट्रैक्टर एक बार चार्ज होने में 3 से 5 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है और 4 से 6 घंटे का बैकअप देता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना पैसा बचाता है। 4 से 6 घंटे का बैकअप अगर हम डीजल ट्रैक्टर से लेते हैं, डीजल टिलर से लेते हैं, तो उतना ही लीटर डीजल लग जाता है, 4 से 6 लीटर डीजल लग जाता है। बट अगर साइज की बात करें तो जिस हिसाब से ये साइज है, आई थिंक ये हिली एरियाज के लिए ज़्यादा बेटर है। ये सभी जगह के लिए अच्छा है, हिली एरिया में भी अच्छा है। ये 10 HP के बराबर पावर प्रोड्यूस करता है, तो जहाँ पे किसान पावर टिलर्स यूज़ कर रहे हैं उस एरिया के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, मैं आप इस बात पे आता हूँ, काम क्या क्या कर सकता है। देखिए, ये आता है इस फॉर्मेट में। ये एक वॉकिंग ट्रैक्टर है, हाथ से लेके चलाते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ये राइड ऑन अटैचमेंट जोड़ देते हैं, जिसमें लिफ्ट लगी है, ब्रेक लगी है, तो आप इसे बैठ के खेती कर सकते हैं। पीछे रोटावेटर लगा है, जो अभी तक का सबसे सिक्योर्ड रोटावेटर है। जब आप कोई किसान चलाता हो तो उसमें किसी तरह के एक्सीडेंट की संभावना नहीं है। आगे एक रीपर लगा है जो हार्वेस्टिंग में काम आता है। अगर आप इसमें ऐसे ट्रॉली जोड़ देखते हैं तो आप इसे एक लोडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 किलो तक का लोड खींच सकते हैं। तो स्प्रेयर का काम किया जा सकता है, कोलू चलाया जा सकता है। मतलब एक मशीन को एक किसान पूरा साल किसी न किसी काम में लगा के रख सकता है। फार्म हाउसेस के लिए बहुत अच्छी मशीन है। सर, बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ कितनी है इसकी? लिथियम फास्फेट बैटरी है सर, 5 से 7 साल की उसकी लाइफ होती है और 2 साल की वारंटी होती है। प्राइस वाइज बात करें तो इकोनॉमिकल? जो मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मेट में अगर मशीन आती है, इसमें ये रोटावेटर और 48 एच की बैटरी मिला के 1,65,000 प्लस GST की मशीन है, जो भी इसका करंट प्राइस है। और ये आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी इशू की है 50,000 की इसके ऊपर। तो 50,000 फ्लैट है या उसकी परसेंटेज के हिसाब से? 40% या 50%, विच एवर इज लेस, है ना। और अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है या ST कैटेगरी है तो उसमें 65,000 है। Yes, sir. I am Gagan Kaur, Executive Director at Future High-Tech Batteries Limited. We are India's oldest lithium battery pack manufacturer. We are based in Mohali under the name of Future High-Tech Batteries Limited. We are making lithium batteries for all applications. Here, because we are at EV platform, so all electric vehicle batteries are on display. Our national USP is batteries for big applications like tractors, and this is for hatchback car. And at the back you can see for the swappable solution for scooters and forklift batteries. So our major USP is that we are oldest in India, so we have seen field years, more than 10 years we have seen in the field. So what we are offering, what we are claiming, it is full proof and we have tried and tested. And then we are purely a lithium battery company where we are offering solutions in all lithium chemistry. It is not only about lithium ion or lithium ferrophosphate. And then most important is customization. Because lithium battery is not like lead acid or other conventional batteries where it is standard off the shelf. It has to be designed according to the customer requirement, vehicle requirement. Main benefits of lithium is high energy density, powerful battery, more life cycle. So running cost per cycle is very low as compared to other conventional sources. Ma'am, as Chandigarh administration is now providing, even Mohali is also working, that all the big houses, at least 1 canal houses, they must having a rooftop solar panels. Yes, so yes. you seeing a bigger opportunity now? Yes, definitely. It is there in electric vehicle and in energy storage also. Because see, lithium battery is heart and soul of energy storage solution or electric vehicle. And it is emission-free green energy. So basically, this transition from the traditional sources to electric sources, lithium is the most widely accepted and popular worldwide solution because of its technical features and its green energy categorization. In a new budget, the government has also announced something different for the lithium. Yes. Actually, it is a very good and welcoming move because in India, what is happening that lithium battery pack manufacturers, they are growing. So to boost lithium battery manufacturing sector, government has announced duty exemption and duty reduction on capital goods. So we really appreciate because with this, lithium battery supply in India will increase, manufacturing will increase, and definitely then cost benefit will be there.
ये हमारी नेक्सॉन ईवी है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारी टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी आई है। इसमें आपको दो मॉडल मिल जाता है, एक नेक्सॉन प्राइम और नेक्सॉन मैक्स। ये हमारी नेक्सॉन मैक्स है, इसमें आपको 40.5 किलोवाट की बैटरी की कैपेसिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको कंपनी क्लेम करती है 437 किलोमीटर, बट एक्चुअली में ये चलती है हमारी 420 किलोमीटर। एंड इसमें आपको मैं नेक्सॉन प्राइम का बताऊं तो इसमें आपको रहता है 30.5 किलोवाट की बैटरी की कैपेसिटी के साथ, उसमें आपको रेंज मिलेगा 350-360 किलोमीटर। एंड इसमें अगर फीचर वाइज मैं बात करूं, इसमें आपको ये टॉप मॉडल रहता है नेक्सॉन मैक्स का। इसमें आपको लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी, इसका डायल जो रहता है वो डिजिटल रहता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक मिल जाएगी, रीजनरेशन का मोड आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, इकोनॉमी मोड आ जाता है, रीजनरेशन के मोड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल 1, 2, 3 करके आप कह सकते हैं। इसका प्राइस रहता है, एक्स शोरूम प्राइस है इसका हमारा XZ प्लस का 3.3 के साथ 17.5 लाख की। ऑन रोड आपको ये पड़ जाएगी 19,16,000 रुपये की। एंड इसका जो वेटिंग टाइम रहता है वो हमारा रहता है कम से कम 1 मंथ का। सर ये 450X टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं, इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट मोड एंड वार्प मोड। जैसे जैसे मोड चेंज करते हैं हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाता है और रेंज डिक्रीज होती जाता है। सेम फ्यूल इंजन, आपको इसमें 105 किलोमीटर का रेंज मिलता है, टॉप स्पीड 90 का मिलता है आपको। बैटरी लाइफ 7 to 8 ईयर्स है। आपको इसमें बैटरी का वारंटी 5 ईयर्स का मिलता है, 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर एंड 4th and 5th ईयर्स आपको मिलता है इसमें 60,000 किलोमीटर लिमिटेशन। आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है 22 लीटर्स का। ऑन रोड प्राइस चंडीगढ़ आपको मिलता है 1,72,000। अगर आपका चंडीगढ़ का एड्रेस है तो आपको विद इन 3 मंथ्स में गवर्नमेंट के साइड से 31,450 रुपीज सब्सिडी मिल जाती है। और कितने मॉडल्स आ रहे हैं इसमें आपके? इसमें मॉडल्स एक है, वेरिएंट 2 है, 450X एंड 450 प्लस। बेसिकली क्या है कि सेम व्हीकल्स को हम डाउनग्रेड कर देते हैं 450 प्लस को। वो ऑन रोड प्राइस 1,40,000। उसमें क्या डिग्रेड करेंगे आप? उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें आप नेविगेशन यूज नहीं कर पाओगे। हमारा जो वार्प मोड है 90 की स्पीड, वो आप मोड्स यूज नहीं कर पाओगे। आपका जो रेंज है वो उसमें 85 का होता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी EV एक्सपो के ऊपर अपनी आज की प्रस्तुति। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सपो में जाने का मन ज़रूर बनेगा और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो अभी 2 दिन पड़े हैं, जाइए इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या नया चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में और हाई एंड कार्स में। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पे, तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।